potential difference? So can anybody tell me what is potential difference, bacha? But unnecessary, don't keep your mic in unmute mode, because lot of disturbance will be there. So whenever you want to say something, yeah, you want to answer something, yeah, if you got some doubt, then only you can just unmute and you can ask, and quickly you have to keep it in mute mode. So can anybody define what is potential difference? Because unless the potential difference is not applied, so ultimately electrons will not move in specific direction. So I'll consider a conductor. So you got many number of electrons, and these electrons, they are moving in random direction, right? So they are moving in random direction. So the net velocity of this electron will be 0. Now across this, you'll connect a cell. And when cell is connected, we always say potential difference is applied. So ultimately, the cell will be the source of potential difference. Plus, minus, it has got two terminals. One is positive, another is negative. So the potential difference, if I take it as V, obviously this end will have positive, this is negative. I mean, the end of the conductor which is connected to positive terminal will have positive potential. And of course, negative will have negative potential. But clear up to this much? Yes, sir. Now, bacha, what is the charge on electronegative? So negative, negative repel, positive, negative attract. It means all the electrons inside the conductor will experience force. And here they are going to experience force of repulsion. Here they will experience force of attraction, because inside the conductor, when the potential difference is applied, a field is produced that is referred as electric field. Here E represents, of course, electric field. Electric field. So because of this electric field, the charges will move in single direction. In short, they will move from negative to positive. Now, don't you think they are moving in single direction, bacha? Bacha, don't you think they are moving in single direction? Yes, sir. So if they are moving in single direction, definitely current will be produced, right? And you know that current is always produced opposite to the motion of electron. Here, electron is moving like this. This is going to be the motion of electron. And current will be produced opposite to the motion of electron, always. So this will be the direction of current. So since electrons are moving in single direction, current will be produced. And the direction of current is always from higher potential to lower potential, right? So electron will move like this. Electric field direction will be like this. Current will be in the same direction. Is it clear, everybody? Is the diagram clear? Yes, sir. बच्चा अभी सोचने वाला क्या बात है, जैसे हम लोग ने सेल को कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव हुआ, राइट? तो एक डायरेक्शन में मूव हुआ तो मतलब कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया होगा. अभी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन दिया होगा बच्चा? सेल दिया होगा. सो अल्टीमेटली सेल एनर्जी देता है. सो एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ तो रिलेशन है, राइट? राइट? सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज the amount of work done per unit charge to move the charge from one point to another point, one place to another place, one point to another point, is called potential difference. बच्चा दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अल्टीमेटली इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट? बच्चा बराबर है? यस सर. तो डोंट यू थिंक वर्क डन पर यूनिट चार्ज है आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल जाता है, V is equal to
W upon Q. V is equal to W upon Q because it is work done per unit charge है या work done per charge है, right? So इससे SI unit भी लिख लेंगे हम लोग. So SI unit is work done है तो जूल है, of course charge है तो कूलम है, and a joule per कूलम को हम लोग volt भी बोलते हैं. So it is denoted by V. V for volt, right? Yes, बच्चे sir. इधर तक समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी थोड़ा प्रिसाइज बात करेंगे बच्चा. सपोज मान लो ये जो एंड है पॉइंट, इसको मैंने ए कंसिडर किया, इसको मैंने बी कंसिडर किया, राइट? तो एंड ऑफ द कंडक्टर, एक एंड ए लिया, दूसरा एंड बी लिया. अभी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी या पॉइंट्स ए एंड बी is defined as work done to move unit positive charge. Unit positive charge, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हम लोग इसको Q0 डिनोट करते हैं. फ्रॉम बच्चा A टू B है तो आपको चार्ज को मूव करना है B टू A. फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, राइट? तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको आप वी ए भी ले सकते हो, विच विल बी वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम बी टू ए अपॉन Q0, राइट? अभी कोई बोला वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम बी टू ए कितना है, तो ऑब्वियसली क्या लिखेंगे बच्चा? WBA विल बी इक्वल टू Q0 इधर जाएगा, दैट इज Q0. In bracket you can write VA minus VB. बच्चे समझ में आया? Yes, sir. अभी कोई बोला सर A to B बोलो, A to B मूव करने के लिए क्या होगा, तो आप लिखेंगे Q0. Obviously it is VB minus VA होगा. समझ में आ रहा है? Yes, sir. So आप B to A जा रहे हो तो चार्ज मूव, जो चार्ज मूव हो रहा है वो Q0 होगा, देन VA minus VB है. मतलब फाइनली किधर है आप उससे माइनस करना है आप. अभी A to B आप जा रहे हो तो फाइनली आप B पे है, राइट? तो VB माइनस VA है. यू गेटिंग मी? Yes, sir. Yes. आई होप एवरीबडी फॉलोड. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना मतलब सेल एनर्जी देता है किसको? इलेक्ट्रॉन्स को. वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? B to A पे जाता है, राइट बच्चा? सो एक यूनिट चार्ज के लिए कितना एनर्जी दिया जाएगा एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाने के लिए, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है. आई होप इट इज वेरी क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. फाइन बच्चे, कंप्लीट करो. हो गया सर लिख के. बच्चा सबका हुआ? No, sir. Yes, sir. Yes, sir.
सो जिसका नहीं हुआ है कंप्लीट कर लो. So I hope it is done. Yes, sir. Okay, fine. So obviously potential difference apply किया तो करंट तो एक ही डायरेक्शन में जाता है. So we'll define current now. Fine. So next is electric current. Electric current. Electric current. Fine. इसको हम लोग I से डिनोट करते हैं. सो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट तो प्रोड्यूस होगा एंड करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है. करंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होता है. दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड. सो हाउ यू विल डिफाइन करंट बच्चा? सिंपल. इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्वियसली कंडक्टर में ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होगा, राइट? सो इट इज इलेक्ट्रॉन्स. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब हर एक में इलेक्ट्रॉन ही होना वो जरूरी नहीं. किसी में पॉजिटिव आयन हो सकता है, किसी में नेगेटिव आयन हो सकता है, राइट? सेमीकंडक्टर में तो नया कॉन्सेप्ट आता है होल्स का. सो ये गॉट डिफरेंट चार्ज कैरियर्स, बट इधर इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, राइट? कंडक्टर में the rate of flow of electric charge with respect to, बच्चे ये जो लिखा है मैंने with respect to है time in any given area of cross section of a conductor is called current. अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब बच्चे इसको एक प्लेन कंसीडर करो. इधर एक प्लेन, यू कंसीडर अ प्लेन. सो अज्यूम करो इन टाइम टी क्यू चार्ज इधर पास हो रहा है. बच्चे समझ में आ रहा है ना? यू कंसीडर अ प्लेन देयर. तो टाइम टी में कितना चार्ज पास हो रहा है बच्चा? क्यू. देन ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन हम लोग करंट को लिखेंगे इट्स क्यू अपॉन टी. मतलब क्यू इज द चार्ज पासिंग थ्रू दिस प्लेन इन टाइम टी. समझ में आ रहा है? Yes, sir. मतलब वो जो प्लेन दिख रहा है आपको, एक प्लेन, उसमें क्यू चार्ज पास होता है इन टाइम टी. तो करंट क्या होगा? इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ, अभी मान लो बच्चा ये जो प्लेन में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं इन टाइम टी, राइट? तो ऑब्वियसली हम लोग क्यू को NE लिख सकते हैं, बराबर है ना? मतलब Q को हम लोग N इंटू E अपॉन T लिख सकते हैं. सो वेर ऑब्वियसली N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या है बच्चा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बच्चे पॉइंट क्लियर है? हाँ Yes, सर. sir.
ओके फाइन, तो अभी उसका एसआई यूनिट लिखेंगे। ऑब्वियसली एसआई यूनिट चार्ज है तो कुलुम पर सेकेंड, एंड कुलुम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। कुलुम पर सेकेंड विल बी रेफर्ड एज व्हाट बच्चा? एम्पियर। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। अभी इन केस आपको 1 एम्पियर डिफाइन करना है, 1 एम्पियर, तो आप क्या करेंगे बच्चा? डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। देखो, आई को 1 डालेंगे तो चार्ज भी 1 कुलुम होगा एंड टाइम 1 सेकेंड होगा, राइट? मींस इफ 1 coulomb of charge flows per flows in 1 second, flows in 1 second in any area of cross section of a conductor, then current flowing through the conductor is said to be बच्चा क्या होगा? 1 एम्पियर होगा, राइट? Yes, sir. बच्चा अभी कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूं। देखो, एक इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलुम होता है। अभी आपको 1 कुलुम चार्ज चाहिए तो आपको 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ेगा बच्चा, राइट? Yes, sir. मतलब एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज है, तो 1 कुलुम के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब आप एक वायर लिया तो आपने बोला कि इसमें करंट 1 एम्पियर पास हो रहा है, तो आपने बोला करंट 1 एम्पियर पास हो रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियस है इधर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग ने कंसिडर किया, तो इधर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पास होगा इन 1 सेकेंड, है ना बच्चा? Yes, sir. मतलब 1 कुलुम चार्ज पास होना चाहिए 1 सेकेंड में, एंड 1 कुलुम के लिए ऑब्वियसली आपको 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स लगता है। इलेक्ट्रॉन तो ऑपोजिट जाता है, तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स Ne इलेक्ट्रॉन्स पास होता है, एंड n का वैल्यू क्या होगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, वो भी कितना बच्चा? 1 सेकेंड में। आई होप यू आर गेटिंग, आई होप यू आर गेटिंग बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. फाइन, सो ये नोट डाउन कर लो, देन हम लोग उसका डायरेक्शन भी थोड़ा बात करेंगे, देन वो स्केलर है क्या, वेक्टर है क्या, वो सब देखेंगे। सो ये कंप्लीट अप टू दिस मच।
मेरा लिख के हो गया। ओके, बाकी सबका बच्चा चल रहा है? Sir, wait 1 minute. या Hello, sir. यस मैडम। Sir, this last diagram should be drawn. See, if you understood the concept, there is no need to draw this. Okay, sir. So everybody finished? Yes, sir. So should I rub the board? Should I rub the board? Is it okay? Done? Yes, sir. Fine. Okay. Now, the direction of current, you know that it is always from node. Number one, the direction of current is always opposite to the direction of motion of electrons, the free electrons, right? Second, will it be scalar or vector? You study scalar vector, right? You know scalar and vector. But the current will always flow from positive to negative. Will it ever flow from negative to positive? No. So ultimately, the direction is only one. That is always from positive to negative. But if it would have been vector, for example, see, physical quantity is divided into two types. One is scalar, another is vector. Scalar means a physical quantity only with magnitude, like my length, my mass. So they are all, we cannot say show the direction. But if I am running with some velocity, then obviously you have to tell the magnitude as well as the direction also, right? So any physical quantity which has got magnitude and direction will be referred as vector. But when it comes to vector, the direction of vector can be changed. You can change the direction of velocity, right? Yes, sir. But here, no doubt current has got direction. But can you, change the direction of current? Can you change the direction of current, bacha? No, Not sir. possible, right? Sir. So it will have only one direction. और वेक्टर में क्या होता है बच्चे देखो, फोर्स ये डायरेक्शन में है तो हम लोग एफ बार लिखते हैं, फोर्स को ऑपोजिट पर है तो वेक्टर के हिसाब से माइनस लिखना पड़ेगा, मतलब जब भी डायरेक्शन चेंज होता है तो माइनस लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक वायर ऐसा लिया तो इधर मैंने आई लिखा, तो इधर मैं माइनस आई लिखूंगा कि आई लिखूंगा बच्चा? आई लिखूंगा। सो अल्टीमेटली सब जगह आई लिख रहा हूं, मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ क्योंकि हमको पता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, बराबर ना बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. सो इसका मतलब जो वेक्टर का रूल्स है उसको करंट ओबे नहीं करता है। तो एक्चुअली करंट टेंसर में आता है, टेंसर क्वांटिटी है, बट आपका सिलेबस में टेंसर नहीं है, तो आपको स्केलर और वेक्टर में किसी को चूज करना है, तो ऑब्वियसली विल गो विद स्केलर। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. मतलब अभी कोई पूछा व्हाई इट इज नॉट वेक्टर, तो आपको बोलना पड़ेगा कि वेक्टर का मतलब डायरेक्शन है बट वेक्टर का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको ओबे नहीं करता है, इसके लिए वो स्केलर है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी,
quantity. Very important point. And third, बच्चा SI यूनिट में जो है करंट का एम्पियर है, बट जब आप CGS का बात करते हैं, CGS यूनिट, करंट का CGS यूनिट ऑब्वियसली बायोट है, बायोट, राइट? ऐसा नहीं, इट्स BI से रेफर. Is it okay? Yes, sir. बच्चा बायोट भी एक साइंटिस्ट का नाम है, याद रखना. सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू हम लोग ने जो पढ़ा है, साइंटिस्ट का नाम है, तो हम लोग बायोट ऐसा लिखेंगे, बराबर ना बच्चा? फॉर Yes, sir. एग्जाम्पल एम्पियर है, एम्पियर, तो आपको पता है ना, एम्पियर में नाम है तो स्मॉल ए लिखना है, बट डिनोशन में कैपिटल ए लिखना है, Yes, sir. Yes, sir. हाँ. पता है ना? Yes, sir. अभी मीटर है, राइट? तो अभी हम लोग इधर क्या ऐसा मीटर लिखते हैं कैपिटल में, इधर स्मॉल लिखते हैं. आई होप यू गेटिंग. Yes. Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. मीटर साइंटिस्ट का नाम नहीं है बच्चा. यू गेटिंग द पॉइंट? Yes. तो इसके लिए बायोट एंड इसको BI लिखेंगे. इज इट ओके? Yes, sir. फाइन देन. अभी रिलेशन भी पता रहना चाहिए बच्चा. 1 एम्पियर जो है 1/10 बायोट है, तो अल्टीमेटली 1 बायोट जो है क्या होगा बच्चा? 10 एम्पियर होगा. तो इसका मतलब बायोट ज्यादा है कंपेयर टू एम्पियर. यू एग्री विद दिस? Yes, Yes, sir. ओके बच्चा, इधर तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, एक जनरलाइज केस लेते हैं. जनरलाइज मतलब सपोज एक सिस्टम है, सपोज एक कंटेनर है जिसमें पॉजिटिव आयोन्स भी हैं और नेगेटिव आयोन्स भी है, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है. सो यू गॉट ऑल टाइप ऑफ चार्जेस. सो इन दैट केस इसमें करंट कितना फ्लो होगा वो फाइंड आउट करना है. तो आप क्या करेंगे बच्चे? एक प्लेन कंसीडर करेंगे. सो विल कंसीडर ए प्लेन, राइट? और ये प्लेन में आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना पॉजिटिव चार्ज जाता है, कितना नेगेटिव चार्ज जाता है, वो फाइंड आउट करेंगे, राइट? एक टाइम इंटरवल में, आई मीन इन गिवन टाइम इंटरवल, सो मान लो T है, राइट? एक टाइम इंटरवल दिया है. लेट बच्चा किसी का माइक ऑन है, देखो बंद कर लो, आवाज आ रहा है. सो लेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज moving in forward direction is q plus है. क्या बच्चा? q plus समझ में आता है ना? Yes, sir. And amount of negative charge is q minus. मतलब ये प्लेन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम में q प्लस जा रहा है और q माइनस जा रहा है. देन ऑब्वियसली नेट चार्ज है, नेट चार्ज दोनों का एडिशन होगा बच्चा, राइट? Yes, sir. So net charge moving in forward direction is given by, क्या होगा बच्चे बताओ? Obviously Q is equal to Q plus Q minus. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. अभी ये फ्लो कंटिन्यूस ऐसे ही हो रहा है, मतलब इरेगुलर नहीं है. मतलब ये जो Q है ना, हर एक टाइम, अभी टाइम देखा T, चार्ज फ्लो कितना हुआ? Q हुआ. नेक्स्ट और एक टाइम T देखा तो यही चार्ज हो रहा है, मतलब स्टडी फ्लो है.
राइट? समझ में आ रहा है बच्चा? Yes, sir. फॉर स्टडी फ्लो, ये जो टर्म है Q अपॉन T, मतलब टोटल चार्ज अपॉन टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. Is directly proportional to time, and this ratio is called current. Is called current. So ultimately आपको करंट की इक्वेशन आता है I is equal to Q upon T. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. अभी मान लो बच्चा इरेगुलर है, मतलब एक टाइम में Q आया, दूसरा टाइम में Q डैश आया, चेंज होते जा रहा है, तो अल्टीमेटली करंट कांस्टेंट रहेगा कि बच्चे चेंज होते रहेगा? Constant. Okay. कैसा बच्चा? चेंज होते हैं, मतलब चार्ज हर एक टाइम चेंज हो रहा है, इधर जो फ्लो हो रहा है अभी कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला कि टाइम टी पे Q है तो नेक्स्ट टाइम टी पे भी Q ही पास होगा, राइट? Yes. Yes. अभी मैंने Yes. बोला कि अलग अलग, मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट 1 कूलम पास हुआ, देन नेक्स्ट टाइम 0.5 हुआ, देन बाद में 2 कूलम हुआ, 4 कूलम हुआ, देन फिर से 0.5 हुआ, तो करंट हर एक टाइम सेम रहेगा कि चेंज होगा बच्चा? चेंज होगा, राइट? Change होगा. बच्चा बराबर है, चेंज होगा. Yes, Yes. sir. तो सपोज ऐसा है तो आप I is equal to डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T ले सकते हैं, where delta Q is the charge flowing in time delta T. Is it okay? Yes. Sir. Delta is the change बच्चा, change. Delta refers to change. बच्चा, Yeah. is it very clear? Yes, sir. अभी आपको एक इंस्टेंट का फाइंड आउट करना है, एक इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में फाइंड आउट करना है कि कितना करंट है, तो ऑब्वियसली ये डेल्टा का वैल्यू छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए बच्चा? आई मीन डेल्टा टी जो है वो ज्यादा रहेगा तो एक इंटरवल का होगा, आपको एक टाइम का चाहिए, एक एग्जैक्ट टाइम का, तो ये डेल्टा टी का वैल्यू ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? बच्चा एक मिनट सुनो, ये इधर तक समझ में आया? Yes. तो बच्चे ये जो करंट है, इट इज अप टू टाइम डेल्टा टी, राइट? अभी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में करंट डेल्टा आई मीन आई है. अभी मेरे को सपोज एक इंस्टेंट का चाहिए, फॉर एक सेकंड में कितना है वो चाहिए, या सेकंड में कितना है वो चाहिए, देन ऑब्वियसली ये डेल्टा टी को मेरे को स्मॉल करना पड़ेगा, तो आई कैन अप्लाई ए मैथमेटिकल फंक्शन कॉल्ड लिमिट. तो जब मैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिखता हूं, तो डेल्टा टी का वैल्यू छोटा छोटा होके आएगा, मतलब एक पॉइंट के एक सेकंड के लिए आएगा, राइट? बच्चा समझा? No, sir. बच्चे ये जो टाइम है ना, ये वाला I is equal to Q upon T, ये हमेशा स्टडी है, मतलब हर एक टाइम में चार्ज पासिंग सेम रहेगा तो ये आएगा, हर एक टाइम अलग अलग है तो ये आएगा, राइट? अभी हर एक टाइम अलग अलग है तो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना है वो देखना है, तो आप क्या करेंगे बच्चा? डेल्टा टी का वैल्यू 0 डालेंगे, तो डेल्टा टी 0 है तो विल गेट ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. यस और नो? Yes. बच्चा सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया, देखो इधर ठीक से देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये आई है और ये टी है. अभी ग्राफ कांस्टेंट आ रहा है तो ये फॉर्मूला ये, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अभी ग्राफ सपोज इरेगुलर है, ऐसा है. अभी ऐसा है तो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे जो करंट है पर्टिकुलर इंटरवल पे, ये मतलब डेल्टा टी और ये डेल्टा आई, तो ये जो सॉरी डेल्टा आई है, मतलब ये क्यू अगेंस्ट टी. ओके, आई ओके, दैट इज आल्सो के आई पकड़ के चलो, आई वेरिएबल है ना, मतलब ये डेल्टा टी पे जो करंट है, एवरेज करंट, राइट, ये इंटरवल पे, तो ये देगा. बच्चा समझा? Yes, sir. अभी मेरे को बताओ, मेरे को एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना है वो देखना है, तो डेल्टा टी को छोटा करना पड़ेगा ना बच्चा, वो छोटा एकदम स्मॉल हो गया तो ये पॉइंट से मैच होगा. Yes. बच्चा सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. मतलब एक पर्टिकुलर आपको टाइम पे चाहिए तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डालना पड़ेगा, एंड आपने इनकेस डाला तो आप इसको
ये स्मॉल हो गया तो आप इसको dq अपॉन dt ले सकते, मतलब डेल्टा इज लार्ज है, d स्मॉल है, राइट? Yes, sir. इज इट ओके बच्चा? मतलब ये स्टडी करंट है, ये करंट इन पर्टिकुलर इंटरवल डेल्टा टी है। ये जो करंट है ऑफ कोर्स इट इज एट ए गिवन इंस्टेंट का करंट है, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट में करंट होगा, ये देगा dq अपॉन dt। इज इट ओके? Yes. यस सर। फाइन बच्चा, कंप्लीट करो इसको। बच्चा आपको ये समझ में है तो काफी है, बट आगे जाके हम लोग ये लिमिट विमिट सब मैथ्स में जब पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगा। सो आई होप अभी समझ में आया होगा जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, राइट? Yes. ओके बच्चा, ओके कंप्लीट करो। लिख के हो गया। What about others? Sir, overwriting. Okay, fine. Everybody finished, right? Bacha, everybody finished writing
Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So you have got potential difference as well as current. बच्चे जो लास्ट वाला पॉइंट है एक बार ठीक से देखो. सपोज मैं वेलोसिटी अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम का ग्राफ बनाता हूं, राइट? तो अभी सपोज ग्राफ ऐसा आ रहा है, तो मतलब जैसा टाइम जा रहा है एक्स भी जा रहा है, बराबर है ना? यस सर. Yes, sir. मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जितना डिस्टेंस कवर हो, टाइम पे जितना डिस्टेंस कवर हो तो हमेशा सेम है, तो वेलोसिटी का आप डायरेक्टली एक्स अपॉन टी लिख सकते हैं, बराबर है? Yes, sir. सो मान लो एक्स का बदले में चार्ज है एंड इधर टाइम ही है, तो ऑब्वियसली करंट को हम लोग क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं. इज इट ओके? Yes, sir. सो नेक्स्ट ग्राफ में बच्चा एक्स अगेंस्ट टी में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व है, मतलब हर एक टाइम में डिस्टेंस चेंज होते जा रहा है, कभी ज्यादा कभी कम. ओके? Okay. सो अभी वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे बच्चा? एक इंटरवल लेंगे आप, ये डेल्टा टी है एंड ऑब्वियसली ये क्या बच्चा? डेल्टा एक्स है, तो v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होगा. समझ में आया? Yes, sir. अभी करंट चार्ज होता तो करंट को हम लोग क्या लिखते थे बच्चा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. इज इट ओके? Yes, sir. यस सर. हाँ. अभी मेरे को बच्चे ये जो इंटरवल को चोट स्मॉल करके एक पर्टिकुलर टाइम का वेलोसिटी कितना है देखना है. ये तो एवरेज है ना, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर रीजन का बता रहे हो. सपोज मेरे को एक इंस्टेंट का चाहिए, इंस्टेंट का. समझ में आता है? हाँ. तो आपको v इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी लिखना पड़ेगा. सो डी एक्स अपॉन डी टी मतलब डेल्टा टी स्मॉल होके डी एक्स बन गया, डेल्टा टी डी टी बन गया, मतलब ये कम होके यू विल गेट ए स्मॉल लाइन, एंड स्मॉल लाइन मतलब ऑब्वियसली वो डी टी होगा, एंड इधर डिस्टेंस ये क्या होगा बच्चा? वेलोसिटी का ये डी एक्स होगा, राइट? Yes, sir. मतलब ये डी एक्स अपॉन डी टी ये इंस्टेंट का वेलोसिटी होगा. पहला तो एवरेज था, अब ये इंस्टेंट का देगा, इंस्टेंट का. वैसे ही जब मैं I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी लिखता हूं, वो इंस्टेंटेनियस करंट होगा. डिड यू गेट दैट? Yes, Yes, sir. sir. अभी तो ज्यादा क्लैरिटी मिला, राइट? Yes. यस सर. Fine, bachcha. So you have got potential difference. We have got current. Yes, the relation between this current and the potential difference, it's given by a very famous law in current electricity that is referred as Ohm's law. Right, bachcha? Yes, sir. कोई बता सकता है मेरे को स्टेटमेंट ओम्स लॉ का? कैन एनीबॉडी टेल मी द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ? कोई भी बता सकता है. सो इट्स अ ओपन क्वेश्चन. ऐसा कुछ सुना है? As long as physical state of a conductor remains constant, yeah, same constant, then current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied across it, yeah, across the conductor. This is Ohm's law. बराबर है ना बच्चा? ये तो सुना ही होगा आपने लोअर स्टैंडर्ड में. Yes. अभी बात करेंगे फिजिकल स्टेट का. जब बच्चा फिजिकल स्टेट मतलब इधर इंक्लूड होता है लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल और टेम्परेचर. ये चारों कांस्टेंट हो रहा है. बच्चा समझ में आ रहा है? यस सर.
मान लो ये जो करंट है इसको मैंने I ले लिया और मैं पोटेंशियल डिफरेंस को V लिया है, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू, इफ दिस इज कांस्टेंट, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं VI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। बराबर है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. और ये Yes, भी sir. लिख सकता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। अभी इक्वेट करना है तो कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा, सो V इज इक्वल टू IR होगा। V इज इक्वल टू IR। अभी किसी को ऐसा लगता है सर आपने R ये साइड क्यों लिया, ये साइड में क्यों नहीं लिया? कोई है जिसको ऐसा लगता है कि सर आपने R I का साइड में क्यों लिया? जल्दी बोलो जल्दी। इसमें तकलीफ नहीं है तो ऑब्वियसली हम लोग आगे बढ़ेंगे, तकलीफ है तो एक्सप्लेन करूंगा मैं उसको। क्विकली टेल मी बच्चा। हेलो हाँ हेलो सर, फिर से बताओ ना ये। बच्चा V इज इक्वल टू IR लिखा ना मैंने। R को हाँ। कांस्टेंट को ये साइड क्यों नहीं लिया मैंने, ये साइड में क्यों लिखा? बच्चा इसके लिए लिखा क्योंकि सपोज एक कंडक्टर है, राइट, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं वो तो कांस्टेंट रहेगा बच्चा, वो चेंज नहीं होता है। क्योंकि कंडक्टर के अंदर जब करंट पास होता है तो कंडक्टर चेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी, करंट विल चेंज ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर। यस और नो? वोल्टेज तो बाहर वाला है ना, वो क्यों चेंज होगा? यस सर। बच्चा इज द पॉइंट क्लियर? V जो हाँ है ना सर, बच्चा, हम लोग बाहर से अप्लाई किया, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो अल्टीमेटली I जो है वो कंडक्टर के हिसाब से चेंज होता है, इसके लिए I का उधर कांस्टेंट आना चाहिए। इज द पॉइंट क्लियर? हाँ सर, यस। Okay, where R is mathematically is constant of proportionality, वो तो आपको पता ही है। And with respect to conductor, and with respect to, बच्चा with respect to लिखा है, conductor, it is called resistance, it is called resistance। तो एक नया टर्म आ गया, resistance। तो रेसिस्टेंस R है तो V इज इक्वल IR, तो पहला R का इक्वेशन लिखेंगे विच इज V अपॉन I। तो नया क्वांटिटी है तो SI यूनिट भी लिखेंगे। बच्चा क्या है SI यूनिट? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, करंट एम्पियर, एंड वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग ओम का, इसका ओम को रेस्पेक्ट देके उसको ओम बोलते हैं। एक्चुअली ओमेगा है डिनोशन, सो दिस इज रिप्लेस्ड बाय ओम। Ohm is omega. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. And अभी सपोज 1 ओम को डिफाइन करना है तो आपको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। 1 ओम रेसिस्टेंस, तो R को 1 ओम लिखा, वोल्ट को 1 वोल्ट लिखा, करंट को 1 एम्पियर लिखा। तो टेल मी बच्चा, हाउ वी विल डिफाइन? सिंपल है ना? If 1 volt 1 volt of PD applied across a conductor produces a current of 1 ampere, then resistance of conductor is said to be 1 ohm. Is it clear बच्चा? मतलब जब आप 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे, 1 एम्पियर करंट पास हुआ तो 1 ओम है उसका रेसिस्टेंस। इन केस आप बोलेंगे 2 वोल्ट पास किया तो 2 एम्पियर आया तो फिर भी उसका रेसिस्टेंस 1 ओम है। मतलब जरूरी नहीं है कि 1 ही डालो, आप 2/2 भी डाल सकते हो, बट आपको रेशियो 1 आना चाहिए। यू गेटिंग द पॉइंट? yes, sir. Yes, sir. बच्चा Yes, sir. आगे से आपको ओम्स लॉ भूलना नहीं है, तो एकदम अच्छे से ध्यान से लिख लो। In fact, you should not forget the statement now. As long as physical state of a conductor remains constant,
then the current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied across the conductor, right? ये complete करो बच्चा. बच्चा finished? Yes, sir. Yes, sir. Any confusion? तीनों No, point sir. समझ में आया? Potential difference, electric current, then Yes, Ohm's sir. law, right? Oh, yes, sir. रब कर दूं ना? हाँ sir. Fine. Yes, sir. बच्चा next lecture में obviously हम लोग को Ohm's law में से क्या मिला? Resistance मिला. Next lecture हम लोग क्या देखेंगे? Resistance का origin देखेंगे. Resistance क्या होता है? उसका origin क्या है? Right? Then उसका एक similar term आता है, that is conductance. Conductance क्या होता है? वो discuss करेंगे. Then we'll go for limitation of Ohm's law. मतलब Ohm's law ohmic conductor में you'll first discuss types of conductors, ohmic और non-ohmic. Then limitation discuss करेंगे. Is it okay? Yes, sir.
Yes, sir. Fine then. So we will stop now. So we'll continue next time.